everyone, Vinita this side. Welcome back. So, guys, students, as you know, we have recently completed our chapter, My Childhood. So, My Childhood summary deals with the famous biography, Wings of Fire, of the celebrated Indian APJ Abdul Kalam. So, My Childhood refers to a section in this book. This section or chapter talks about the early days of Kalam. Furthermore, the chapter gives us an idea of how the childhood of Abdul Kalam prepared him to become a successful scientist and president in the future. Much has to do with his upbringing, which Kalam discusses in the section from Wings of Fire. However, Kalam tells us about his parents, siblings, teachers, and friends, etc. So, after complete the chapter reading question answers completely, now we do have some extra questions that would be completely related with the same chapter. So these are some extra questions. So let's start. First of all, we do have the question, where was Abdul Kalam born? So here we do have the answer. He was born in the town of Rameshwaram. उसका जन्म रामेश्वरम टाउन में हुआ था. We do have the question number 2. Write the names of Abdul Kalam's parents. So, the name of Abdul Kalam's parents, like for his father, was Jainul Abdin, and his mother's name was Ashima. I hope you will understand this. Nextly, we do have question number 3. Where was Abdul Kalam's house located in Rameshwaram? अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में कहाँ पर था? His father, his house was located in the Mosque Street in Rameshwaram. उसका घर मस्जिद वाली गली में, रामेश्वरम के एक मस्जिद वाली गली में था. How old was Abdul Kalam when the Second World War broke out? अब्दुल कलाम कितने साल का था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो छिड़ा हुआ था? At that time, he was just 8 years old. उस समय वो सिर्फ 8 साल का था. Next, question number 5. Name 3 close friends of Abdul Kalam. अब्दुल कलाम के 3 close friends के बारे में 3 close friends के बारे में बताओ. 3 close friends of Abdul Kalam were, उसके 3 close friends थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन and शिव प्रकाश. These are the 3 friends of Abdul Kalam. Next, the question number 6. What could the new teacher not tolerate about Abdul Kalam? New teacher क्या सहन नहीं कर पाया about Abdul Kalam? क्या चीज उसके लिए सहनीय नहीं थी अब्दुल कलाम के लिए? The new teacher could not tolerate, वो नया टीचर ये बात नहीं सहन कर पा रहा था. A Muslim boy sitting with Hindu priest's son. कि एक मुसलमान का बच्चा, मुस्लिम बॉय, एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ कैसे बैठ सकता है? What was the name of Abdul Kalam's science teacher? So the name of Abdul Kalam's science teacher was Shiv Subramaniam Iyer. Now question number 8. What did the science teacher's wife refuse? साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने क्या करने से इनकार कर दिया था? The science teacher's wife refused to serve food to a Muslim boy in her kitchen. साइंस टीचर
शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने उस मुस्लिम बच्चे को अपने किचन में खाना सर्व करने के लिए साफ मना कर दिया था। Nextly, we do have question number 9. When did the Second World War break out? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? The Second World War broke out in 1939. Okay. Nextly, question number 10. What did the new teacher in the fifth standard ask Abdul Kalam to do? न्यू टीचर जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में था अब्दुल कलाम को क्या करने के लिए कहा? द न्यू टीचर आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द लास्ट बेंच। नए टीचर ने उसको लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कहा। What kind of poison was the young teacher spreading in the class? किस तरह का जहर जो यंग टीचर थी वो क्लास में फैला रही थी? He did not like that a Muslim boy was sitting with a Hindu Brahmin boy. उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि एक मुस्लिम बॉय हिंदू ब्राह्मण बॉय के पास बैठा है। So thus the young teacher was spreading the poison of social inequality and communism. वो सामाजिक असमानता और कम्युनिटी गैप का जहर जो है वो फैला रहा था जो यंग टीचर था। He was poisoning the minds of children. वो बच्चों के माइंड में, बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहा था। The poison of social inequality. I hope you will understand these questions. Now, nextly, we do have the question short answer type. So here we have the question. What was the reaction of Abdul Kalam's father when he wanted to leave home? अब्दुल कलाम के फादर का क्या रिएक्शन था जब रामेश्वरम छोड़कर वो जाना चाहता? एंड व्हाट वाज हिज मदर्स रिएक्शन? उसकी मदर का क्या रिएक्शन? अब्दुल कलाम्स फादर, हियर इट इज कलाम। अब्दुल कलाम के जो फादर थे गेव हिम हिज परमिशन ग्लैडली, उसने बहुत खुशी से उसको परमिशन दे दी थी। बट हिज मदर वाज अ लिटिल वरीड, लेकिन उसकी मदर जो थी वो थोड़ी सी परेशान थी। एट दिस हिज फादर टोल्ड हर दैट अ चाइल्ड इज लाइक अ सीगल। इस पर उसके फादर ने उसे समझाया, उसे बताया कि अ चाइल्ड, की एक बच्चा जो है वो एक सीगल की तरह होता है। One day he has to learn to fly alone like a seagull. एक दिन he has to learn, उसे अकेले अपनी उड़ान भरना सीखना होता है। So this cleared the doubt of his mother. इस बात से उसकी मदर के माइंड में जितने भी डाउट्स थे वो सब क्या हो गए? क्लियर हो गए। Nextly in question number 2, what was Shiv Subramaniam Iyer's wife reaction when she came to know that a Muslim boy was invited to have a meal with them by her husband? शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ का क्या रिएक्शन था when she came to know, जब उसे पता चला that a Muslim boy was invited, कि एक मुस्लिम बच्चे को उसके हस्बैंड ने घर खाने पे बुलाया है। शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स still life was horrified to know this. उसकी जो वाइफ थी was horrified to know this. वो बहुत हैरान थी, डरी हुई थी इस बात को सुनकर, इस बात को जानकर। She refused to serve food to a Muslim boy in her ritually pure kitchen. उसने बिल्कुल मना कर दिया कि वो मुस्लिम बच्चे को अपने पूजनीय पवित्र किचन में खाना नहीं सर्व करेगी। But the teacher was not perturbed at this. लेकिन उस बात को उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। He served Kalam with his own hands. उसने कलाम को अपने खुद के हाथों से खाना
खिलाया. I hope you will understand. Nextly, what made Subramanyam Iyer's, here we do have Iyer. We can say that Iyer's wife, shortly we can say कि जो अय्यर की वाइफ थी, चेंज हिज माइंड, उसका माइंड कैसे चेंज हुआ. शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ वॉच कलाम हैविंग हिज मैन फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, हैविंग हिज फूड. जब वो खाना खा रहा था तो वो उसको अपने किचन के दरवाजे से खड़े होकर पीछे जो है वो देख रही थी. तो जब उसने उसको देखा, she did not find any difference in the way he took his meal. Fins made her change her mind. उसने देखा कि उनके उसके खाने के तरीके में और हमारे खाने के तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं था. सो इसलिए उसने अपना माइंड चेंज किया. ऑन एंड ऑन हिज नेक्स्ट विजिट टू द टीचर्स हाउस, और जब उसने दोबारा अपने टीचर के घर विजिट किया, शी टुक कलाम, हियर वी डू हैव कलाम. ओके, शी टुक कलाम इनसाइड द किचन. कलाम को किचन में ले गई एंड शी सर्व्ड हिम फूड विद हर ओन हैंड्स, और उसने उसको खाना अपने खुद के हाथों से सर्व किया. Nextly, in question number 4, we do have how did Lakshman Shastri return reform one young teacher. लक्ष्मण शास्त्री ने एक टीचर को कैसे बदला. लक्ष्मण शास्त्री was रामानंद शास्त्री's father. लक्ष्मण शास्त्री रामानंद शास्त्री का फादर थे. When he came to know, जब उन्हें पता चला कि यंग टीचर की एक युवा अध्यापक ने had shifted कलाम, उसने कलाम को शिफ्ट किया है टू द लास्ट रो, कलाम को आखिरी बेंच पे शिफ्ट कर दिया. He got very angry, वो बहुत गुस्सा हुए. He summoned the teacher, उन्होंने टीचर को बुलवाया. He told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. मासूम बच्चों के दिल में ये सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता और भेदभाव का जहर ना बोले. He asked him either to apologize or quit the school. उसे कहा गया कि या तो वो इस बात के लिए माफी मांगे या स्कूल छोड़े. Thus the teacher regretted and he was reformed. उस टीचर ने माफी मांगी, खेद महसूस किया, and he was reformed, वो बिल्कुल बदल गया. Next, in question number 5, what kind of person was Kalam's father? कलाम के फादर किस तरह के आदमी थे. Tall and handsome. Tall थे, handsome थे. Kalam's father Janul Abdin did not have much of formal education. ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. He did not even have much wealth. इतना पैसा भी नहीं था. However, he was very practical man with the vast store of wisdom. उनके पास बहुत बुद्धि थी. प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन थे. He was generous. वो बहुत ही generous. We can say that सबकी बात समझने वाले. And never obstructed the progressive ways of his children. और उन्होंने कभी भी कोई भी प्रोग्रेसिव वेज जो है ना बच्चों के लिए, उसमें कभी भी बाधा नहीं डाली. As a responsible head of the family, he provided both material and emotional security. फैमिली का हेड होने के नाते उन्होंने मटेरियल वाइज और इमोशनल वाइज फैमिली की हर एक रिक्वायरमेंट को, हर एक जरूरत को पूरा किया. एंड ही प्रोवाइडेड ईच एंड एवरीथिंग except the luxuries items. He provided Kalam and his siblings a very wonderful childhood. So nextly we do have the question number 6. How was Kalam's mother ideal support to her husband? कलाम की जो मदर थी वो एक आदर्श सपोर्ट, आदर्श साथी कैसे थी उनके हस्बैंड के लिए. Like for Kalam's father, Kalam's mother Ashima was really a very ideal
support to her husband. She was a picture of goodness and deep kindness. She was a picture of goodness and deep kindness. और बहुत ही गहरी दयालुता का और अच्छाई की एक मूर्त थी. She was tall, good looking and very attached to her children. बहुत हाइट में लंबी थी, गुड लुकिंग थी और बच्चों के साथ बहुत स्नेह के साथ रहती थी, अटैच थी. लाइक हर हस्बैंड शी वॉज वेरी जेनरस एंड फेड अ नंबर ऑफ आउटसाइडर्स थे. अपने हस्बैंड की तरह वो भी बहुत जेनरस हार्ट की थी और बहुत सारे बाहर के लोगों को डेली खाना खिलाती थी. कलाम इनहेरिटेड द वैल्यूज ऑफ काइंडनेस एंड जेनरसिटी फ्रॉम हर. कलाम को ये गुण काइंडनेस और जेनरसिटी के अपने पेरेंट्स से ही, अपनी मदर से ही विरासत में मिले थे. Nextly, we do have what did Kalam look like as a young child? एक युवा बच्चे के रूप में कलाम किस तरह दिखाई देते थे? कलाम did not take after his tall and handsome parents. अपने टॉल और हैंडसम पेरेंट्स के जो चीज़ें थी, जो मतलब गुण थे, वो उनके अंदर नहीं थे. ही वॉज रादर शॉर्ट बॉय विद एवरेज लुक्स. वो छोटी सी हाइट के थे, एवरेज सी लुक थी, विद ऑर्डिनरी लुक्स अनलाइक दैट ऑफ हिज पेरेंट्स हु हैड क्वाइट striking features. His appearance was undistinguished. He was a rather short boy, छोटी सी हाइट का, ऑर्डिनरी सी पर्सनालिटी का एक बॉय था जिसके अंदर कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं थे और उसकी जो अपीयरेंस थी, उसकी जो पर्सनालिटी थी, अजीब थी. नेक्स्टली वी डू हैव द क्वेश्चन, वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस सिचुएटेड? उनका घर कहाँ था? अब्दुल कलाम हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द मॉस्को स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम. रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में उनका घर था. This was this was his ancestral house. वो उनके पूर्वजों का घर था and had been built in the middle of 19th century. जो 19th century के मिड में बनाया गया था. It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick. ये एक अच्छा बड़ा पक्का हाउस था जो लाइमस्टोन और ब्रिक्स से मिलकर बनाया गया था. Nextly, we do have the question number 9. Why does Kalam say he had a secure childhood? कलाम ने ऐसा क्यों कहा कि उनका बचपन बहुत सिक्योर था, मैटरनली और इमोशनली दोनों तरह से? Though not very well off, Kalam's father made sure that he provided his family with all the necessities in terms of food, medicine and clothes. बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियली वी कैन नॉट से दैट, बट फिर भी कलाम के फादर ने ये चीज़ बिल्कुल निश्चित की हुई थी कि उन्होंने अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को हर वो ज़रूरत की चीज़ जो है वो दी थी. फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, एवरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, कलाम गॉट ऑल द लव एंड पेरेंटल गाइडेंस फ्रॉम देम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. इसके अलावा कलाम को पूरा प्यार और मार्गदर्शन अपने पेरेंट्स से बचपन में मिला. That is why he says that he had a very secure childhood. इसलिए वो कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही सुरक्षित बचपन जो है वो अपने पेरेंट्स से मिला. Nextly, we do have question number 10. How did Abdul Kalam earn his first wage? The same question we do have in our NCERT also, in our textbook also. Like Abdul Kalam ने अपनी सबसे पहली जो अर्निंग थी by catching bundles of newspaper from moving trains for his cousin Samsudin, who used to distribute newspapers in Rameshwaram. ट्रेन से उन बंडल्स को कैच करता था वो, जो उसका कजन शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूट किया करता था रामेश्वरम की गलियों में. During the Second World War, the train halt at Rameshwaram station was suspended. उस स्टेशन पर गाड़ी का रुकना बंद कर दिया गया था. So bundles of newspapers were thrown off moving trains. इसलिए चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर्स के बंडल जो हैं वो गिराए फेंके जाते थे and had to be collected, और उन्हें कलेक्ट किया जाता था. So by this way, Abdul Kalam earned his first wage.
Nextly, we do have why did the demand for tamarind seeds increase suddenly? अचानक से tamarind seeds की जो डिमांड थी वो इतनी कैसे बढ़ गई एंड हाउ डिड इट हेल्प कलाम और इसमें इस बात ने क्या सहायता दी कलाम को When the Second World War broke out in 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ there was a sudden demand for tamarind seeds in the market मार्केट में अचानक से tamarind seeds की डिमांड बढ़ गई कलाम collected these seeds कलाम उन सीड्स को इकट्ठा करता था एंड सोल्ड देम टू अर्न एन आना और उन्हें बेच दिया करता था एक आना कमाने के लिए which was a big amount in those days for a small boy like him जो उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था एटलीस्ट फॉर दैट शॉर्ट बॉय उस बच्चे के लिए तो खास नाउ क्वेश्चन नंबर 12 राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड कलाम वाज वेरी इंटरप्राइजिंग डिस्कस अपने बचपन से ही वो बहुत एंटरप्राइजिंग था Kalam was an enterprising child who used to make full use of opportunities अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाना है अपॉर्चुनिटी को यूज़ कैसे करना है ये बचपन से उसमें उसे आता था ड्यूरिंग द वॉर व्हेन देयर अकर्ड ग्रेट डिमांड फॉर टेमरिन सीड्स इन द मार्केट जब मार्केट में टेमरिन सीड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी ही यूज्ड टू कलेक्ट दीज सीड्स वो उन सीड्स को कलेक्ट किया करता था एंड सेल देम ऑफ टू अ प्रोविजन शॉप और पास की एक दुकान पर जाकर उनको बेच दिया करता था थर्स ही वॉज एबल टू अर्न सम मनी फॉर हिमसेल्फ इससे वो अपने लिए थोड़ा सा पैसा कमा लेता था एंड दिस इंसिडेंस शोज दैट ही वॉज वेरी एंटरप्राइजिंग तो ये इंसिडेंट जो है ये दिखाता है कि वो कितने एंटरप्राइजिंग थे क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डू यू थिंक धिनमानी इज द नेम ऑफ आपको क्या लगता है जो दिनमानी था वो किसका नाम था गिव अ रीजन फॉर योर आंसर आंसर दीजिए दिनमानी सीम्स टू बी द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर दिनमानी एक न्यूज़पेपर का नाम है Kalam mentions that he gathered information about the World War for his brother-in-law Jialu Labdin. कलाम ने मेंशन किया कि ही गैदर्ड इंफॉर्मेशन कि उसने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की अबाउट द वर्ल्ड वॉर जो वो इंफॉर्मेशन अपने ब्रदर इन लॉ से कलेक्ट करता था ना वही इंफॉर्मेशन वहीं मेंशन होती थी सो लेटर ही ट्राई टू ट्रेस दीज स्टोरीज इन द हेडलाइंस उसने इन्हीं हेडलाइंस जो उसने अपने ब्रदर इन लॉ से सुनी थी उसको ट्रेस उन्हीं हेडलाइन उसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन से जो है वो ट्राई किया हेडलाइंस आर टाइटल्स ऑफ न्यूज़ आइटम्स सो दिनमानी मस्ट बी अ न्यूज़पेपर और वही हेडलाइंस जो थी वो टाइटल्स हुआ करती थी तो इसलिए पता चलता है कि जो दिनमानी था दिनमानी यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम What characteristics does Kalam say he inherited from his parents? क्या चीज उसको विरासत में मिली है अपने पेरेंट्स से Kalam inherited honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and deep kindness. Deep kindness from his mother. उसको सेल्फ डिसिप्लिन ऑनेस्टी अपने पापा से विरासत में मिला था एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर okay so nextly we do have okay so now we can say that faith in goodness अच्छाई में विश्वास रखना एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर और डीप काइंडनेस जो है वो उसको उसकी मदर से मिली है हिज सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट trained him as well as his
थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर टू एक्वायर दीज करेक्टरिस्टिक्स। उसकी जो सामाजिक आर्थिक इमोशनल एनवायरनमेंट है उसमें उसको इसी तरह से ट्रेंड उसको और उसके भाई बहनों को इसी तरह से ट्रेंड किया गया था टू एक्वायर दीज करेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं विशेषताओं से वो परिचित थे। नेक्स्टली इन क्वेश्चन नंबर 15, who were Kalam's school friends? What did they become later? Here we do have the question, who were Kalam's school friends? उनके स्कूल के फ्रेंड्स कौन थे और वो आगे जाके क्या बने थे? Kalam's three close friends were रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश। ये उसके फ्रेंड्स थे। ऑल थ्री ऑफ देम सेटल्ड वेल, बहुत वेल सेटल्ड हुए अपनी लाइफ में। रामानंद रामानाथ शास्त्री, उसने अपने फादर का जो प्रेस्टहुड पुजारी का काम था वो ले लिया था। अरविंदन took of the business of arranging transport for visiting pilgrims, और तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का बिजनेस जो है वो किया था। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, और शिव प्रकाशन केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना साउथर्न रेलवे में। So we can say that they all are well settled. They all were well settled. Now in question number 16, what did Kalam's family do during the annual Shri Sita Ram Kalyanam ceremony? कलाम के फैमिली जो है वो क्या करते थे? ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, कलाम की जो फैमिली थी वो अरेंज करती थी बोट्स को विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म में वहां पर वो बोट्स अरेंज करते थे फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड, भगवान की मूर्तियों को मंदिर से मैरिज प्लेस पे लेके जाने के लिए। देन वी डू हैव सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ तक ले जाते थे बोट्स को, एंड विच वॉज नियर कलाम्स हाउस, जो कलाम के घर के बिल्कुल पास था तीर्थ, राम तीर्थ। Nextly, in question number 17, we do have who asked Kalam to sit on the back bench to of his class. Why? किसने कलाम को पीछे बैठने के लिए बोला था क्लास में? A new teacher at the Rameshwaram Elementary School could not tolerate that, एक नया अध्यापक आया था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में जिसने ये बात सहन नहीं की that a Muslim sat with रामानंद शास्त्री, एक मुस्लिम बॉय रामानंद शास्त्री के साथ बैठा था, और स्केर्ड थ्रेड वेयरिंग हिंदू, और ऐसे लड़के के साथ जिसने बहुत पवित्र धागा जो है वो पहना हुआ है। दिस वॉज कंट्रेरी टू द टीचर्स नोशन ऑफ सोशल रैंकिंग, उस अध्यापक के सामाजिक स्तर से ये बात बिल्कुल विपरीत थी। सो ही ऑर्डर्ड कलाम टू सिट ऑन द बैक बेंच, इसलिए उसने कलाम को पीछे बैठने की अनुमति दी, उसको पीछे बैठने के लिए कहा। I hope you will understand this. Nextly, in question number 18, what happened when the new teacher at the Rameshwaram Elementary School ordered Kalam to go to on the last row of the class? क्या हुआ था जब टीचर ने उसे पीछे जाने के लिए बोला? Kalam and his friend Ramanand Shastri became very sad. वो बहुत उदास हो गए थे. When the new teacher ordered Kalam to go and sit on the back bench of the class, जब नए अध्यापक ने उसे पीछे जाके बैठने के लिए कहा, Ramanand was absolutely crestfallen, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. We can say that while Kalam shifted his seat to the last row, जब वो शिफ्ट कर रहा था अपनी सीट को, so Kalam could
forgets, could not never forget those tears all his life. और कलाम जो है वो कभी भी उन आंसुओं को, जो आंसू उसकी आंखों में भर आए थे सीट चेंज करने के लिए, जो उसकी आंखों में आंसू थे रामानंद शास्त्री की, जब कलाम अपनी सीट को शिफ्ट कर रहा था, तो वो आंसू वो कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूल पाया. What did Ramanand Shastri's father do when his son told him that the new teacher had sent Kalam to the next last seat? रामानंद शास्त्री के फादर लक्ष्मण शास्त्री ने अपने बेटे की बात को सुनकर क्या किया? रामानंद father's Lakshman Shastri was deeply distressed to learn that the new school teacher had shifted Kalam to the last bench. रामानंद शास्त्री के जो फादर थे, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने बहुत डिस्ट्रेस्ड हुए, मतलब बहुत परेशान हुए, ये सोच कर कि एक टीचर कैसे एक बच्चे की सीट को ऐसे चेंज करा सकता है, ओनली फॉर दैट रीजन कि वो मुस्लिम है. ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज डिस्पैरिटी, सो ही समवन, वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाया, इस बात को सहन नहीं कर पाया, ये सोशल पॉइजनस को, तो इसलिए उसने टीचर को बुलवाया एंड टोल्ड हिम नॉट टू स्प्रेड द पॉइजन, और उसे समझाया कि वो ये पॉइजन बच्चों के दिलों में ना बनाए. He bluntly told him to either apologize or leave the school. उन्होंने कहा या तो वो स्कूल छोड़ दे या माफी मांगे. So the teacher not only regretted his action but also reformed himself. अब उस अध्यापक ने ना ही उनसे माफी मांगी बल्कि अपने आप को बदला भी. Nextly we do have question number 20. Who was Subramaniam Iyer? Shiva Subramaniam Iyer was Kalam's science teacher. उसके साइंस टीचर थे. टू, एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, पुराने विचारों के ब्राह्मण फैमिली से. ही वॉज समथिंग ऑफ अ रिबल, वो उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे. अ मैन ऑफ लिबरल व्यूज, आजाद ख्यालों का एक आदमी. ही वांटेड टू चेंज अ सोसाइटी दैट वाज रिगिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. वो चाहता था उन लोगों के सोच को बदलना जो सामाजिक वर्गों के हिसाब से समाज को, देश को बांटते हैं. He knew that one wished to change the system, one was born to confront many problems. वो जानता था कि कोई एक ऐसा विश करेगा, इच्छा रखता है सिस्टम को चेंज करने की, तो हजारों लोग कई समस्याओं के सामने उनको बांध देते हैं. नेक्स्ट, why did Shiv Subramaniam's Iyer wife refuse to serve food to Kalam in her kitchen? उसने क्यों मना किया था? Because she was an orthodox and conservative Brahmin. छोटी सोच की, old beliefs, Brahmin family से थी. She had peculiar notions about the sanctity of her kitchen. वो बहुत peculiar थी अपने किचन की sanitation के लिए, पवित्रता के लिए, which she feared would be defiled if she served meals there to someone who belonged to a different faith. उसे ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं लग रही थी कि वो किसी एक ऐसे पर्सन को खाना सर्व करे अपने किचन में जो अलग विश्वास का पर्सन है. सो दैट्स व्हाई शी रिफ्यूज्ड, इसलिए उसने मुस्लिम वाइफ को अपने किचन में खाना देने से इनकार कर दिया. हाउ डिड शिव सुब्रमण्यम रिएक्ट टू हिज वाइफ्स बिहेवियर? शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी वाइफ के बिहेवियर पे क्या प्रतिक्रिया दी व्हेन शी रिफ्यूज्ड टू सर्व कलाम इन हर किचन? जब उसने खाना खिलाने के लिए मना कर दिया तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या रिएक्ट किया? शिव सुब्रमण्य अय्यर was mentally prepared for such behavior from his conservative wife. वो पहले से परिचित थे, वो रेडी थे, उनको पता था कि ऐसा ही कुछ होगा. So without getting angry, इसलिए बिना नाराज हुए और बिना कुछ रिएक्ट किए, he served कलाम with his own hands. उन्होंने कलाम को अपने खुद के हाथों से खाना खिलाया and sat beside him
eat his meal. Okay. So nextly we do have the question number 23. Why did Shiv Subramaniam invite Kalam for dinner again the next weekend? उसको दोबारा अपने घर डिनर पे क्यों बुलाया साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने? कलाम वॉज विजुअली अपसेट, वो थोड़ा उदास था ये देखकर कि शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने उसको अपने किचन में खाना खिलाने से मना कर दिया. दिस मस्ट हैव पेन्ड अय्यर, इसका दर्द अय्यर को भी जरूर हुआ होगा. So in order to make amends and to ensure that Kalam overcame his disappointment and hurt, Shiv Subramaniam Iyer invited Kalam to another dinner the following weekend. उस पे ओवरकेम करने के लिए, काबू पाने के लिए उस निराशा पे शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उसको दोबारा इनवाइट किया डिनर पे उसी सेम वीकेंड पे. ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग टाइम अय्यर मस्ट हैव वांटेड टू स्पीक विद हिज वाइफ ऑन द इशू, क्योंकि इस टाइम के बीच में वो अपनी वाइफ से बात करना चाहता था इसी सेम विचार विषय पर. अय्यर वांटेड कलाम टू ब्रेस अप फॉर सच ऑब्स्टेकल्स इफ ही वांटेड टू चेंज द सिस्टम. वो चाहता था कि अय्यर जो है वो इस फेमस पर्सनालिटी अब्दुल कलाम टू ब्रेस अप उनके आने बीच में आने वाली सभी जो प्रॉब्लम्स हैं ऑब्स्टेकल्स हैं उनको उनको ओवरकम करने के लिए बिल्कुल नॉर्मल रहे. अगर उसने सिस्टम को चेंज करने की ठानी है तो ये चीज़ें तो उनके सामने आएंगी. देन इन क्वेश्चन नंबर 24, while talking of segregation of the different social groups, which social group does Kalam talk about? कौन से सामाजिक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं और क्या ये ग्रुप इजीली आइडेंटिफिकेबल हैं? Yes, these are Muslims and Hindu Brahmins. Yes, these groups are easily identifiable by the cap. कैप जो पहनी हुई थी अब्दुल कलाम ने, it was the indication of that he marked the group as a Muslim. And secondly, scared threat that was worn by Brahmins, usually Brahmins. So that's why we can say that these social groups easily identifiable. Now in question number 25, what thoughts crossed Kalam's mind when he was having food to Shiv Subramaniam's house for the first time? क्या विचार थे जो अब्दुल कलाम के मन में आ रहे थे when he was having food, जब वो फर्स्ट टाइम शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर खाना खा रहा था? कलाम नोटिस दैट शिव सुब्रमण्यम्स वाइफ was watching him, कि वो उसे देख रही थी behind the kitchen door, किचन के दरवाजे से पीछे से, while he was having food, जब वो खाना खा रहा था. So at this time he wondered, वो बहुत हैरान था whether she observed any difference, कि क्या वो किसी डिफरेंस को ऑब्जर्व कर रही है in the way a Muslim ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal, कि कुछ डिफरेंस उसको महसूस हो रहा है कि ये मुस्लिम कैसे चावल खा रहा था, कैसे पानी पी रहा था और कैसे फ्लोर को क्लीन कर रहा था. I hope you will understand these questions. Rest of the questions we will discuss in another video. So thank you. Have a nice day.